السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج ہم اپنے شو کا آغاز اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے کریں گے. اور آج کی فلم، آج کی کہانی اور آج کے لوگ ہیں لیلا اور مجنو. لیلا مٹی کھا کھا کے موٹی ہو گئی ہے. جانی پر دفعہ کون مٹی کھاندا؟ مجنو لگتا ہے ککڑ خراب ہوا. مجنو لیلا دی وجہ تو فقیر نہیں آیا، ویسے بھی مانگتا سی. نہیں، اچھا خاصا شاعر تھا اور بڑی ٹھیک ٹھاک، مطلب اس کیلیبر کا نہیں تھا. وہ تو ایک ٹرائبل چیف کی بیٹی تھی. اس کی شاعری ہی تو تھی جو مجھے امپریس کرتی رہی. لیکن دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہے برباد محبت کا انجام، کہ جو عشق کر بیٹھتے ہیں، انسانوں سے عشق کرنے کا انجام یہ کہ اچھا خاصا شاعر تھا، ادیب تھا، ایک سینسیبل آدمی تھا. دیکھو کس چھچور پنے میں اللہ نے مبتلا کر دیا کہ اس کے گھر خود پیغام لے کے چل پڑا. بھئی تم کسی رشتہ دار کو بھیجو، کسی عزیز کو بھیجو، یہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے اس کا تذکرہ کرو. یہ قصیدوں میں اس کا نام لے لے کر اسے پکارنے لگا، اسے یاد کرنے لگا. اور اس کے بھائی تبریز نے اس کو وہ جوتے مارے. ان ساری دنیا دے شاعر تیرے کے بچے تے نہیں جام دے. جب پہلی بار لیلا دے گھر گیا، میں دروازہ کھڑکایا ہے، اندروں یہی بولی تے میں سمجھا، میں کہا چاچا جی میں لیلا نو ملنا ہے. یہ سمجھی میں جگت کیتی ہے، یہ ہاتھ بھی میرے تے فدا ہو گئی. بس جب پہلی بار انہوں نے میرے ہاتھ رکھیا ہے، جب میری چیکاں نکل گئی. پھر انہوں نے میرے پیر تے پیر رکھے تو پورے محلے دیا چیکاں نکل گئی. مجنو تیرا دور پھٹے. اچھا مجنو نے ویسے ہویا تو کھائی کی مطلب لیلا عموماً انہوں کھڑکی چو ویکھ دی ہوندی سی، اخیر سامنے آئی. ویسے انٹرنیٹ پہ بھی اس جیسی لیلائیں بے شمار ہیں جو صرف کھڑکی پہ بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ نیچے والا دھڑ نظر نہیں آ رہا ہوتا. باقی پورشن تو مہینے بعد ویکھیا تھا. آفتاب صاحب سنے ویسے محبتیں نہیں ہوندی ہیں. ہاں دیکھ لو اس کا انجام. اندھی نہیں، پاگل بھی ہوتی ہے، احمق بھی ہوتی ہے، موٹی بھی ہوتی ہے. اچھا جس شخص سے اس کے ماں باپ نے شادی کی وہ بڑا حسین و جمیل، نرم و نازک، خوشگوار آدمی تھا. وردہ کے نام سے جانا جاتا تھا. وردہ واہ مینز روز، گلاب، خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا. اسے چھوڑ کے دیکھو کس گٹر کے بچے کے پاس آ کے بیٹھا. مجھے نہیں پسند تھا، میں اس کو نہیں چاہتی ایک تھی. منٹ ٹھہر جا، پہلی گل تو پوچھ لین دے. میں مجنوعہ گٹر دا بچہ میں تو جو تم نے اپنا حشر کر رکھا. یہ تو پیار چ مریا. میں یار بچاؤ لیلا کو لو. بات سنو کیا ہوا. مت کرو میری او بات سنو، اس کا ہاتھ تو چھوڑو. یہ پہلی میری 2 انگلیاں ٹوٹیاں نے. یہ تو پیار اچھی. ایسا مت کرو مجنو. ایک منٹ چھاڑ. لیلا ترکی دا رکشہ لگ رہا ہے. میرا خاندان پیچھے بہت بڑا خاندان آئی. اچھا صرف دی محبت دے وچ، یہ پیار دے وچ تھلا چ رول گیا. میں نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائی نہیں چھوڑے. وہ تو تینوں آپ چھڑ کے گئے سی. گھر کے جتھے جاندی لے جا. سر ویسے یہ کہانی کب کی ہے اور کہاں کی ہے؟ یہ سن 640 عیسوی صحرائے عرب کی کہانی ہے اور ایک بڑا مشہور ادیب ہے، ترکی ادیب حکمت. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہی قصہ 17-18 مختلف زبانوں میں سن رکھا ہے. یہ بڑی پاپولر، بڑی سپر ہٹ کہانی تھی. واہ. ہے فوک لور ہی لیکن سچا واقعہ ہے. اجیز بھائی نے بھی پتہ کیڑی سنے عیسوی دا واقعہ ہے. یہ 8-9 واری دند نکل کے دوبارہ آئے. اچھا یہ بتاؤ کہ صحرائے عرب سے بھاگ کر ہندوستان کیوں آ گئے؟ نہیں میں پیچھے آیا، کسی نظر نہیں آئے تو پیچھے سی. میں ایدی محبت دے وچ ہی میں نہیں مجنو. ہسو نہ چھڑاؤ مینوں. اچھا پلوان جی تسی آرم لاک تو علاوہ اور کی جان دے ہو؟ میں کنو کہہ رہے ہیں پہلوان جی. یا کون ہے تمہارے خیال میں؟ تم دونوں میں سے کون؟ نہیں مجنو ایسا. ایک منٹ ٹھہر. ایک منٹ. مجنو مجھ سے دور مت جاؤ. اسی کو تماشا نہیں کر رہے. اے لیلا سچی مچی بھوتر گیا ہے. بھوتر گیا. مجنو میں تمہارے پیر پکڑتی. ہولی پکڑ. جدو پہلی بار پکڑے سی میرا گیٹا ادو تو نکلے ہوا ہے. اچھا لیلا آرتھوپیڈک بھی ہے. مت کرو مجنو. اے مجنو نے لیلا نو دڑا کے لے جانا سی سر. اونٹ نہیں منیا. لیلا بہن لے گی، اونٹ لیلا نو ویکھ کے بہ گیا. بہت پیار کر دی مینوں. کون؟ ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں. جب اسی سراد میں پہلی بار ملے ہیں یاد ہے؟ بتاؤ ان کو. ایک درخت دے تھلے دو میں بیٹھے سی، یاد ہے؟ یاد ہے. انہیں درخت نو ٹول آئی، درخت لمحہ پہ گیا. یہ تم دونوں سے کوئی گناہ، کوئی
जुर्म, कोई जुल्म सरजद हुआ होगा कि अल्लाह ने तुम्हें इन हालों को पहुंचा दिया। मोहब्बत करने वालों से इसी तरीके से होता है, और मोहब्बत इंसान अदा इसी तरीके से करता है हम लोगों से। लैला ने अपने अबू का गुस्सा पाया है। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मजनू तुम ऐसी बात ना करो कम अज कम। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਰਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਘਸੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। कहता तेन कहता हसावा कहता मैं हुण बैठी नेड़े मैं तो दस दिया मैं तो जंप मारे ना उसे सारा कुछ मैं उजाड़ के रख देना मैं दस दिया कुर्सी करसी आओ जानी परे इत्थे जंप ना मारी लैला, इथों भी तेल निकल आना। अच्छा मजनू का यह हाल मोहब्बत च नहीं होया, वो लैला को खौफ तो ही है ना। अच्छा जी, इन पर 4 मुख्तलिफ फिल्में बन चुकी हैं बड़ी। अच्छा मैं सुना कह रहे हैं इन पर 4 पर्चे हुए हैं। कौन कौन सी सर फिल्में? इसी टाइटल से, इसी उन्वान से, लैला मजनू, जिनमें से मशहूर तरीन फिल्म वो थी जो ऋषि कपूर की, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस फिल्म का एक अफसोसनाक पहलू यह है कि मदन मोहन इस फिल्म के कंपोजर थे। इस फिल्म की तकमील के दौरान उनका इंतकाल हुआ। वो क्या है, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, मोहम्मद रफी के शानदार तरीन गानों में से एक है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका कंपोजर भी मदन मोहन, मेरा ख्याल है ये उनका स्वान सॉन्ग था, आखिरी कंपोजिशन उनकी ये थी। अच्छा, कैस के साथ यानी मजनू साहब के साथ दूसरा जुल्म ये हुआ कि जब इन्हें निकाल दिया गया कबीले से, तो सहरा में जाकर ये रेत पे, इसके पास कोई चीज नहीं थी लिखने के लिए, ये शेर रेत पे लिखा करता था। वाह वाह, उसकी शान में कसीदे लिखा करता था। और बेशर्म शख्स, तुम्हें यही काम रह गया था जिंदगी में? अच्छा मैं सोचा कोई तारीफ करने लग गए कि कैसे लिखते थे वहां पे तुम? सर फिल्मां दे विच ते हीरो हीरोइन या लैला मजनू एडे सोहने सन, तुसी किड्डे भैड़े बना के पेश कर ये रहे हो। मैं हीर रांझा के साथ भी मैंने यही किया था। हाँ जी। सोनी महिवाल के साथ भी यही किया था। उसकी वजह ये कि इन्हें आउट ऑफ प्रोपोर्शन फेम भी मिली, नेम भी मिला, खामखा। ये किया क्या था इन्होंने कि ओलंपिक मेडल जीता था। मैं अभी रोमियो एंड जूलियट की तरफ भी जाऊंगा अनकरीब। आने तो भी फोन आ रहे हैं साडा बेड़ा भी छेती कर करो। लेकिन तारीख विच ना ते इन्हां दे रकम ने, तुसी जो मर्जी कर लो। तुम एक कूड़ आदमी हो। नहीं, तुम कहते हो कि मशहूर बड़े हुए, शोहरत बड़ी मिली। मैंने कितनी दफा बताया कि शैतान से ज्यादा शोहरत किसे मिली होगी। लेकिन मोहब्बत दा ते अज भी इन्हां दा नाम लिता जांदा है कि मैं तेनू लैला मजनू वांगू प्यार करना, हीर रांझा वांगू प्यार करना। वो मोहब्बत जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। वो मोहब्बत पागलपना है, सेल्फ नेगेशन है। और वो किसी दौर, ये नहीं कि फी जमाना, वो किसी दौर में भी काबिल कबूल नहीं थी। यही वजह कि इनका अंजाम अपने घरों में बुरा हुआ, अपने मोहल्लों में बुरा हुआ। इन्हें मुल्क बदर किया गया, इन्हें कत्ल किया गया, संसार किया गया। ये फिर भी नहीं समझे। और आज भी इनके मुकल्लदीन हमारे माशरे में, हर माशरे में मौजूद है। चंद दिन पहले एक लड़की और लड़के ने जहर पी लिया था। दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स थे और जहर पीकर बड़ा अपनी तरफ से तारीख में ना, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, कुत्ते की मौत मरे। माँ बाप दुनिया से शर्मिंदा और ये अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदगी की, अपने ऑनर की, डिग्निटी की हिफाजत करने की तलकीन कर रखी है। कुजाइए कि तुम अपनी जान ले लो। यार भाई सन में बिठा के ना अपने कथारसिस कर दे। नहीं, मैं कोई कथारसिस नहीं करता। अच्छा लैला जी तो दुखी होती है अपने ना? काली दौर में आपने भी कोई इश्क किया? मैंने इश्क विश्क नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। मोहब्बत की होगी? हाँ, मोहब्बत तो हो जाती है, मोहब्बत नेचुरल है। लैला ने मोहब्बत की थी तो मजनू ने मुशक्कत की थी। लैला तू इन्हां दी गल्लां ते ना जावी। सर कुछ दास्तानों में ये भी आता है कि लैला का रंग काला था, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ये हमारे सबसे चहेते रिसर्चर हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? मैं आप लोगों की करतूत बताना चाहता हूँ सर। इन्होंने एक दफा मेला मवेशिया में भी मुलाकात की थी छुप कर। मेला मवेशियां? जी सर। मेला मवेशियां क्या करने गए थे? ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा यार, आप सीधे तो हो जाए प्लीज। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ हाँ, नीचे इस तरह का कर। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਜਨੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਜਨੂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਜਨੂ ਨਾ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनों रात इब्न बतूता में आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा। कायरा मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा शहर है और इसके मानी है
द कॉन्करर, द डिफीटर, फातेह। ये शहर दरियाए नील के किनारे आबाद है और इसका संगे बुनियाद सन 969 कबले मसीह रखा गया। सर आप कभी कायरा गए हैं? जी मैं कायरा जा चुका हूँ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? कायरा को ऐसी खास जगह नहीं, मैं तो एहराम मिस्र के लिए गया था, दरिया नील के लिए गया था। एहराम मिस्र अलबत्ता एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आज तक मिस्ट्री है, समझ ही नहीं आ सकी कि ये क्यों बनाया, कैसे बनाया गया। ऐसा ऐसा बड़ा पत्थर जिसे जदीद दौर की क्रेन नहीं उठा सकती, कैसे लेकर वहां आया गया। और वहां का एक और मशहूर मॉन्यूमेंट अबुल हॉल, हाँ जी हाँ जी, वो जो लाफिंग स्टैचू है, वो लगता है जैसे बड़ा, उसे देखकर दहशत तारी होती है। अच्छा सर, दरियाए नील कैसा है? आपने तो देखा है। दरिया नील बहुत बड़ा दरिया है, उसमें मगरमच्छ तब भी थे, आज भी हैं। सर कोई चंगी चीज भी दसो, सारी डरावनी दसी जा रहे हैं। वहां पर मच्छर बहुत है, ये अपनी वालों तेन उन्होंने अच्छी चीज दसी। और ये मच्छर ऐसा है कि अखबार से या कागज से, गत्ते से नहीं मरता, ये पिस्तौल ना मारी। उसको फ्लाई बीटर से मारते हैं तब मरता है, वो मक्खी के साइज का है। इसका म्यूजियम दुनिया के अजीम तरीन अजायब घरों में से एक है, जिसमें तकरीबन 1,36,000 आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं। और मैंने ये म्यूजियम देखा है, बड़ी लाजवाब जगह है। ब्रिटिश म्यूजियम के बाद अगर कोई आला तरीन म्यूजियम दुनिया में है तो वो ये। इसमें कहते हैं उसकी फिरौन की लाश भी, जी फिरौन की ममियां यहां भी पड़ी हैं, और असल जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में। इजिप्शियन गैलरी है पूरी, जैसे इंडियन गैलरी है वहां की, तो इजिप्शियन गैलरी ब्रिटिश म्यूजियम की वो इससे कई गुना ज्यादा रिच और लाजवाब है। उथे पे फिरौन ये छलावा है। फिरौन खानदान था, फेरोज। अच्छा, ये फेरोज थे जो हमने पढ़ रखा है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है जो, जिसका तज़किरा कुरान पाक में है बड़ी तफसील के साथ। वो फिरौन रैमसीज है, उसका नाम है रैमसीज। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? रैमसीज की लाश तो मिली नहीं थी, वो कैसे मरा था? सर समुंदर च डूब के। हाँ डूब के मरा था, उसकी लाश नहीं मिली थी। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। वो किसी ऐसे शख्स ने उड़ाई होगी जो फिरौन एक ही समझता है कि फिरौन एक ही था। अच्छा मैं एक ही समझा जाए। फिर जनाब इसी शहर में दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी मौजूद है, जामिया अजहर। पहली यूनिवर्सिटी कड़ी सी सर? ये मोरक्को में है, ये भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिया अल करूबैन। ये कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। सच पूछे तो तक्षला यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ है, वो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, और वो हजरत यसु मसीह अलैहिस्सलाम के आने से पहले की है। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। टैक्सला को तक्षला कहते थे जी। तक्षला उसका कदीम नाम है। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੈ, हाँ जी। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और अगर आपने इसकी तारीख पढ़नी हो तो एक कैरेक्टर है गौतम नीलंबर। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? नहीं 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 नहीं, आग का दरिया कुरतुल ऐन हैदर का बड़ा लाजवाल नॉवल है। वाह वाह। उसका एक पोर्शन वो तक्षला यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पे है। सुभान अल्लाह, क्या कहानी है। यहाँ के लैंडमार्क्स में एक है अल तहरीर चौक। 1919 में मिस्री इनकलाब की बुनियाद इसी चौक में रखी गई। 1952 में बादशाहत का खात्मा हुआ, तहरीक इसी चौक से चली। फिर हुस्नी मुबारक का खात्मा जिस तहरीक ने किया वो भी अल तहरीर स्क्वायर से ही। अच्छा पीछे खात्मा है जी, पिछले दिनों जो वाकया हुआ। सर मिस्र च लोग भूखे सौंदे ने, तो खाने खुने का जिक्र नहीं हो रहा। इसकी ये चंद डिशेज ऐसी हैं जो मैंने खुद खा रखी हैं। मैं तस्करा कर रहा हूँ बाबा गनूश। जी ਇਹ ਦੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ? बाबा गनूश। अच्छा मैं समझे खबर ये बुलाऊंगा है। नहीं नहीं, ਇਹ बाबा ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ नहीं ना ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗਨੂਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟਾ। बाबा गनूश दरअसल हमारे भुरते की एक इजिप्शियन किस्म है। ये बैंगन का भुरता नहीं होता? जी जी। उसका गूदा लेकर ਬਾਬਾ ਗਨੂਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ उसमें डालते हैं काली मिर्चें, जीरा, बहुत सारा लेमू निचोड़ते हैं उसके ऊपर। फिर उसके अंदर मिक्स करते हैं जैतून का तेल। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ। जिथों खांदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ये बंदा तू 2 प्लेटा बाबा गनूश लाया। ਉਹ 4-5 ਬਾਬੇ ਲੈ ਆਵੇ।